Hello students. So as you know, we are working on with this chapter, the national. We are about. I mean, we are moving very smoothly towards the. We have. I mean, very smoothly we are completing the different topics. So yesterday the topic that we have started, it was the beginning of the civil disobedience movement. Civil disobedience movement had a deep impact on the Indian national movement, the movement that had started in 1930. It was taking a very different turn all over, and Gandhiji had started this movement. He has launched it with the Dandi March. I'm just giving a brief recap of whatever we have done yesterday. Now we are beginning with this new now we are doing it with this new topic, that civil disobedience movement had started, Dandi March had started, people were very wholeheartedly participating in the movement. But then, while participating in these movements, people were facing a lot of problems, because they were facing they were facing the wrath of the Britishers, as they were following the non-violence. Britishers were very harsh towards the Indians, and the way Indians were participating in the movement. Gandhi ji was happy. You know, when the movement had started, it had taken lot of momentum, it was with lot of speed. But later on, what happened, when Gandhi ji went to attend the second round table conference, the movement slowed down. Britishers इसको रोकना चाहते थे किसी भी तरह से. By all means they wanted to stop this movement, so they were ready to do anything, they were ready to take any steps. And what did the how did the Indians participate in the movement? That is what we will be doing now in this now topic. One thing that I wanted to discuss here is that Britishers used to Gandhiji used to start any movement with full force, with lot of involvement and lot of vigor and lot of dedication by Indian people. लेकिन क्या होता था ना, अभी जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी नॉन कोऑपरेशन का. नॉन कोऑपरेशन हैड स्टार्टेड, पीपल वेयर होल हार्टेडली पार्टिसिपेटिंग. इतना मूवमेंट एकदम पीक पे पहुंच गया था, मतलब ब्रिटिशर्स की नाक में दम हो गया था. सडनली दिस चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया. तो नाउ इंडियंस वेयर फीलिंग कि हम इतना पार्टिसिपेट करते हैं, इतनी मार खाते हैं, and so much of efforts we put in, we go to the jail, we are away from our families, and all these things that we do, it is coming out without any result. So now what happened, that movement had started and many social groups participated in the civil disobedience movement. They were ready to participate, they were willing to participate, and they joined the movement. What were their ideals? What did the Swaraj mean to them? Means the way they were participating now. Actually, we will be studying about what was the motive. किस लिए join कर रहे थे? Because I had already told you that for participating in the movement, डांडी मार्च है, सॉल्ट मार्च है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, एवरीथिंग इज़ फाइन. लेकिन क्या सब जगह सॉल्ट मार्च हो सकता था? नहीं. सो जहाँ सॉल्ट मार्च नहीं हो रहा था, वेयर व्हाट वाज हैपनिंग देयर, जैसे इन द कंट्री साइड मीन्स गाँव में क्या था, रिच पीजेंट्स वेयर देयर. अभी चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज कम्युनिटीज़ लाइक Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. Please remember कि हम किस जगह के peasants की बात कर रहे हैं. ऐसे तो पूरे इंडिया में हो रहा था, but then the examples that we are taken is for particular place, and all these people were very active in the movement. And rich peasants communities, all these rich people who were there,
क्या कर रहे थे? दे वर प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. कमर्शियल क्रॉप्स आपको पता है, टी कॉफ़ी तो खैर उत्तर प्रदेश में और गुजरात में नहीं हो सकता है, बट देन शुगर केन, मस्टर्ड, the crops that are cash crops. They were very hard hit by the trade depression, बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या है, ट्रेड तो बहुत ही हाई लेवल पे करवा रहे थे एंड पैसे नहीं देते थे. द वर्ल्ड वॉर हैड हैपेंड, मीन्स द पीजेंट्स वेयर इन अ कंप्लीट टर्मोइल सिचुएशन राइट नाउ. सो व्हाट हैपेंड, देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड. इनका जितना भी इनकम था, वॉट एवर वॉज देयर कैश इनकम, इट डिसअपियर्ड. एंड means जितनी भी whatever was their agricultural are not getting proper money from that, and government revenue they have to pay, but they found it very difficult. खुद के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, revenue कहाँ से देंगे? From where will they pay the revenue to the Britishers? So what happened, they had asked the Britishers to lower the revenue, and government refused. Just तो they always wanted all the money for themselves ना, उनको सारे पैसे अपने लिए चाहिए. They did not want to help the Indian people, and it led to widespread resentment. Indians were मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई लोगों को. Rich peasants, जो अमीर थे जितने भी, all these rich peasants, they became enthusiastic supporters of civil disobedience movement. All these rich people who were there, so they started supporting the civil. They thought that it was a right time, it was the right method to oppose the Britishers. And what did they do? They organized their communities and they forced and at times forcing means some members were there कि नहीं Britishers के खिलाफ नहीं जाएंगे. Reluctant members were there कि नहीं, हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करते हैं, क्या ज़रूरत है इतना, और लॉस होगा. दे सेड सम पीजेंट्स वेयर सपोर्टिंग सिविल डिसोबीडियंस, सम पीजेंट्स वेयर नॉट सपोर्टिंग. सो द स्वराज का स्ट्रगल, मतलब सिविल डिसोबीडियंस वाज फॉर देम स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. मीन्स दे disobeyed the British and they denied to pay the revenue to the British. What happened? They were deeply disappointed when the movement was called off. अभी I told you just now, I was saying कि लोग इतने full force के साथ participate करते थे movement में, and suddenly what happened, that movement used to come to an end. This was very disappointing for the Indians. And the revenue rates were revised. So when the movement was restarted, अभी जब movement को फिर से शुरू किया गया ना, many of them refused to participate. गांधी जी came back from the second round table conference and वहाँ पे he was not given due respect. उनको बुलाया गया था बात करने के लिए, but Britishers were all together playing a very different role and playing a very political game. So Gandhiji did not like that. He came back and he relaunched the movement. But this time, Indian people were not in a mood to again participate. मैंने बताया ना बेटे आपको कि you start a movement and then the movement is without any result, तो क्या होता है ना, के साथ लोग शुरू करते, the kind of enthusiasm the people start, वो जो है that subsides down. Okay, same thing was happened with the poor peasants. पुअर पीजेंट्स को क्या था, खाली लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड नहीं था, मतलब खाली जस्ट पेइंग द रेवेन्यू, उसमें कम रेवेन्यू पे करेंगे, खाली यही नहीं था. इसमें क्या था, स्मॉल टेनेंट्स में छोटे छोटे किसान भी थे, कल्टिवेटिंग लैंड, दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स हैड लॉट ऑफ लैंड एंड द peasants were there who were cultivating these lands and they rented from the landlords से ये जो है वो रेंट कर रहे थे. एंड वो अब क्या होता था कि द लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ रेंट फ्रॉम देम.
सो नाउ दे सेड कि रेंट जो है वो नहीं देना है. Now what happened? Depression continued. Depression means this was the phase सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो फेज़ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का फेज़, आई एम सॉरी, इट वाज बहुत इकोनॉमिकली पीपल वेयर टोटली ड्रेन्ड आउट. एंड स्मॉल टेनेंट्स मीन्स आपको पता ही है किराएदार, तो अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे थे पूरा. दे वेर वेरी वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दीज लैंड्स, बट द काइंड ऑफ फेवर्स, मतलब जिस तरह का इनको पैसे चाहिए थे वो इनको नहीं मिल पा रहा था. ओके, सो उन्होंने कहा कि अब हम जो है वी विल नॉट पे एनी टू द जमींदार्स. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, दीज पीजेंट्स, आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने बताया है, इलिटरेट पीपल cannot get any support from anywhere, cannot get money from anywhere. तो जहाँ पे भी थोड़ी मारपीट भी होती थी ना, वहाँ पे भी ये लोग इन्वॉल्व हो जाते थे. तोड़ फोड़ हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, दंगा हो रहा है, मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज चिल्ड्रन. सो दिस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट व्हेन दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द मूवमेंट, तो apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords. So what happened कि these poor peasants, they participated in the movement, and now this time had come when lot of confusions were there, because Gandhi ji said non-violence, but now what happened, gradually and slowly the movements were taking a violent turn. So the relationship between the poor peasants and Congress remained uncertain. बिकॉज यू नो कांग्रेस में वही होता था जो गांधी जी कहते थे, एंड गांधी जी वॉज सेइंग प्लीज फॉलो नॉन वायलेंस, बट पीपल वेयर नॉट डूइंग इट. सो फ्रॉम हियर द मूवमेंट स्टार्टेड टेकिंग अ वेरी डिफरेंट टर्न. So civil disobedience movement, now it was happening between the rich peasants, poor peasants, everybody was participating. रिच पीजेंट्स कह रहे थे कि हम वी विल बी नॉट पेइंग द रेवेन्यू, एंड पुअर पीजेंट्स कह रहे थे कि लैंडलॉर्ड्स वेयर कनेक्टेड टू द ब्रिटिश ना, जितने भी पैसे वाले थे उनका ब्रिटिशर्स के साथ लेना देना था. तो फ्रॉम हियर द मूवमेंट वाज सेइंग कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं, मूवमेंट में जितने भी पीजेंट्स थे, उन्होंने कहा हम रेंट नहीं देंगे. तो अपना अपना तरीका था लोगों का पार्टिसिपेट करने का. नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज बिजनेस क्लास. You know the traders, you know the business people, you know the rich people. ये क्या कर रहे थे? Peasants का तो हमने देख लिया, and what about the poor people हमने देख लिया. Now what about the rich people? What were they doing? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे हैड मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट. काफ़ी पैसे इन्होंने कमाए थे. कैसे? यस चिल्ड्रन, आई विल टेल यू what happened, because during the first world war 1914 to 1918 ब्रिटिशर्स needed lot of resources, और ये resources इनको किसने प्रोवाइड किया? all the Indian business people. and this was the time, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, but still I am telling you, this was the time when Tata Steel Industries were established 1914 से 18, because ब्रिटिशर्स को resources चाहिए थे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने के लिए. दे वांटेड स्टील, दे वांटेड बैग्स, दे वांटेड क्लोथ. सो विच एवर इंडस्ट्रीज वेयर टू बी established ड्यूरिंग दिस टाइम. गुजरात में, महाराष्ट्र में, सो मेनी इंडस्ट्रीज वेयर established. तो ये जो फेज था, बिजनेस पीपल हैड अर्न लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ब्रिटिशर्स को उन्होंने कहा आपको जो चाहिए हम देंगे, we will provide you all everything or whatever things we want, but help us in opening the industry. Smartly काम किया. Got it? तो they became powerful and they wanted to expand their business. तो now what they started reacting to colonial policies. British तो उनको हर तरफ से पैसे चाहिए थे. So when sometimes they extracted money in a very improper manner, कुछ भी टैक्स लगा लेते थे, कुछ भी रेवेन्यू ले लेते थे,
तो इससे क्या होता था, द बिजनेस पीपल यूज टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड what were the requirements of the business people? Now they wanted protection against import of foreign goods. Foreign goods that were imported, जितना भी foreign goods आ रहा था, ब्रिटिशर्स, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड ना, उनको भी कुछ कुछ सामान चाहिए था बाहर से. तो ये सारा सामान, ऑल दिस मटीरियल दैट वाज देयर, they wanted favor in that. And rupee sterling foreign exchange ratio. Now rupee sterling मतलब अभी जो डॉलर और यूरो है, in those times it was sterling. उस समय का मतलब the currency at that time was sterling. तो दे सेट कि रुपीज़ का वैल्यू बहुत कम है, स्टर्लिंग बहुत ज़्यादा है, पेमेंट इनको रुपीज़ में होती थी. मीन्स सपोज they are exporting something, the business people are exporting something to the outside country, or they are exporting something to London. तो लंदन इनको करेंसी जो पे होती थी ना, वॉट एवर पेमेंट दे यूज टू गेट दिस पेमेंट इन रुपी, दे वर नॉट गेटिंग इट इज स्टर्लिंग. तो the Indians they were discouraging the imports. They said कि जब हमारे सामान को इक्वल वेटेज नहीं मिल रही है तो हम भी बाहर के सामान को क्यों हम एंटर करने दें. Let the Indian markets be left for the Indian merchants. Got it? अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत लॉसेस हो रहे थे. they were facing lot of losses. So what did they do? They organized business interest. They led their business in a very very big manner. And what did they do? They formed the Indian Industrial and Commercial Congress. Industrialists were there na, so industrialists have to be protected. So they made their own group, Indian Industrial and Commercial Congress. And they also, because क्या होता है कि you need to, आपको कोई movement अगर चलाना है, if you want to carry forward any movement, you have to see that everybody is united. जब तक यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं होगा तब तक people will not get any success or any good results. Got it? So what did the Indian industrialists do? They established the Indian Chamber of Commerce and Industries. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI it was called. अभी भी है. Now let me make one thing very clear, till अभी भी है Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927, and it was to serve the interest of the industrialists who were there in India. And इसके members कौन थे? Because industrialist को अपना loss recover करना था, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे. एंड ब्रिटिशर्स जहाँ पैसे की बात होती थी ना, वहाँ पे इमीडिएटली दे यूज टू सपोर्ट, दे यूज टू आस्क एवरीवन कि आ जाओ हमको सपोर्ट कर दो, एंड वी गिव अस मनी वेयर मनी मैटर वाज इन्वॉल्व्ड. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन द सिंपल लैंग्वेज बेटा. नाउ व्हाट हैपेंड, हु वर द मेंबर्स की, प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स. पहला, रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ FICCI, FICCI. देन इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर पुरुषोत्तम दास, Thakur Das, G.D. Birla, and the industrialists attacked colonial control over the Indian economy. Because Britishers were continuously controlling all the Indian business matters. So they said कि मेहनत हम करें और फ़ायदा कौन ले जा रहा है? Britishers. They did not want that. And they also supported the civil disobedience. As a result, what happened? गांधी जी, द मूवमेंट दैट ही हैज़ लॉन्च्ड, सिविल डिसोबीडियंस के लिए पैसे की ज़रूरत थी. तो जहाँ भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, वेयर एवर फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज नीडेड, दे सपोर्टेड इट. इंडस्ट्रियलिस्ट्स, you know, all these rich industrialists, now they were supporting the national movement in whichever manner they can. And businessmen understood कि colonial restrictions जो हैं,
अगर ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो पूरा का पूरा फ़ायदा उनका अपना होगा। अभी क्या होता है, सपोज दे आर अर्निंग 100 रुपीज़, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन, सपोज दे आर अर्निंग 100 रुपीज़, दे हैव टू शेयर इट विद द ब्रिटिश। 50 खुद रखते हैं, 50 ब्रिटिश को पे करते हैं एज टैक्स, एज रेवेन्यू, एज इम्पोर्ट ड्यूटी, एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। सो हर तरीके से दे हैव टू पे मनी। सो एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, तो बिजनेस ग्रुप्स जो है दे थॉट कि गांधी जी गए हैं, गांधी जी विल कम बैक विथ सम पॉजिटिव रिजल्ट, बट एक्चुअली चिल्ड्रन इट डिड नॉट हैपन। सो द बिजनेस ग्रुप्स वेयर वेरी नाउ नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, मतलब जितना जोश और जितना उत्साह इनका था ना वो ख़त्म हो गया। दे वेर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, इनको लग रहा था ना कि ये जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं एंड बिजनेस है, मीन्स मिलिटेंट मीन्स क्या होता था, तोड़ फोड़, मार पीट, ऑल दीज थिंग्स दैट वेर हैपनिंग, यू नो। इससे नुकसान किसका हो रहा था, तोड़ फोड़ क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ में ही तोड़ फोड़ हो रही थी, दुकानों में लोग घुस जाते थे, एंड these all things that were happening, the people who were facing maximum losses were the industrialists, and they were also not very happy with the influence of socialism. Congress people na, they were supporting the socialist movement, एंड सोशलिज्म में क्या होता है, इक्वालिटी होता है, द इंडस्ट्री पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी दे हैव टू शेयर देयर प्रॉफिट विद द वर्कर्स। तो इस तरह की चीज़ों से क्या हो रहा था, द इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टेड फीलिंग कि इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग टाइम्स दे वुड बी फेसिंग लॉसेस, और वो इस तरह के लॉस के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ कि दे डिड नॉट लाइक इट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर्स में, मीन्स ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कहाँ पे इंडस्ट्री, द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज़, क्या होता था, व्हेन दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट, तो कहीं ना कहीं से उनके जिन इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज़ लॉकडाउन हो जाती थी। तो इफ़ द इंडस्ट्रीज़ आर लॉकडाउन, पैसे कैसे मिलेंगे, सैलरी कैसे मिलेगी, तो हर जगह एवरीवेयर द वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, बट सम प्लेसेस इंडस्ट्रियल द वर्कर्स दे पार्टिसिपेटेड वेरी एंथुजियास्टिकली। जैसे नागपुर रीजन में है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस एंड वर्कर्स स्टेड अलूफ, लेकिन सम वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सम वर्कर्स वेरी enthusiastically participated in the civil disobedience move. So I told you just now that we were discussing industrial people, they did not participate, lekin some places like in Nagpur region एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो है क्या हुआ, ग्रेजुअली एंड स्लोली दे वर कमिंग क्लोजर टू कांग्रेस, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि फॉर दिस इंडिपेंडेंस, फॉर दिस नेशनल मूवमेंट, दे नीड टू सपोर्ट कांग्रेस इन ऑल मैनर्स। गांधी जी का पॉलिसी, वॉट एवर वॉज गांधी जीज पॉलिसी, दैट नीडेड टू बी सपोर्टेड। सो वर्कर्स जो थे दे स्टेड अलूफ, अलग थलग थे, लेकिन सम वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ वर्कर्स जो है वो बहुत होल हार्टेडली दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस एंड दे अडॉप्टेड सम आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। जैसे क्या क्या, द वर्कर्स व्हाट डिड दे डू, हाउ डिड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, दे बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स एंड अगेन एंड दे वर अगेंस्ट द लो वेजेस, कम सैलरी जो मिल रही थी, पुअर वर्किंग कंडीशंस जो थे, इसके खिलाफ इन्होंने कंटिन्यूसली आवाज़ उठाई। And there were also movements by strikes by the railway workers, रेलवे में the workers who were working। तो 1930 में क्या हुआ, the dock workers in 1932 also participated। dock workers you understand ना, या dock जहाँ पे कि जैसे for railways we have the platform, in the same way for the ship जो जहाज होते हैं पानी के, उसके लिए we have the dock।
तो डॉक में बहुत बहुत, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं बहुत सामान आता है इसमें, लॉट ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड, लॉट ऑफ गुड्स आर इम्पोर्टेड, सो लोडिंग अनलोडिंग बहुत बड़ा काम होता है. ऑल द प्लेसेस वेयर वी हैव डॉक, मतलब जहाँ पे भी सी साइड में जहाँ पे भी हमारे पास ये है, वहाँ पे मेनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट बाय वर्किंग इन द डॉक. सो डॉक हुआ, thousands of workers, they also participated and there was a strike by railway workers. छोटा नागपुर में क्या हुआ, माइंस पे द पीपल वोर द गांधी कैप. आज भी क्या होता है ना कि कितनी बार ऐसा मूवमेंट इज देयर, तो द पीपल दे वियर द गांधी कैप, मैं ये बताना चाह रही थी. सो कांग्रेस क्या हुआ ना, नाउ व्हाट हैपेंड, कांग्रेस वाज रिलक्टेड टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड. अभी क्या हो रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ कांग्रेस. द बिजनेस पीपल और द मनी पीपल, दे वांटेड द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस. ठीक उसी तरह वर्कर्स आल्सो वांटेड द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस. तो वर्कर्स को ये तो कांग्रेस फेल्ट कि इफ दे विल बी सपोर्टिंग द वर्कर्स तो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ जाना पड़ेगा. And they did not want to make the industrialist angry, और इंडस्ट्रियलिस्ट को अपसेट नहीं करना चाहते थे. So it felt that this would be alienate industrialist and divide into imperial forces. एंटी इम्पीरियल फोर्सेस मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें फिर टू ग्रुप्स हो जाएंगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का हो जाएगा, एक वर्कर्स का हो जाएगा. सो ओपनली दे वर नॉट industrialists. Now what happened, first time in the Indian national movement we find large scale participation of women. Women were participating on a very large scale, and Gandhi ji's salt march, Gandhi ji was having a salt march, thousands of workers came out of their homes. अभी वन डे आई वाज सीइंग वन एडवर्टीजमेंट, ऐसी मेरे दिमाग में बात आई जस्ट फॉर अ चेंज, इतनी देर से वी आर डूइंग द क्लास ना. वन डे दे वर शो, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट, दीज डेज इट इज़ कमिंग दैट फॉर नेशनल मूवमेंट वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर होम्स. हमको अपने घरों से बाहर निकल के वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. बट नाउ अगेंस्ट करोना व्हेन वी आर फाइटिंग वी हैव टू स्टे इनसाइड आवर होम्स. गॉट इट, ऐसे ही दिमाग में बात आया, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ यू. गॉट इट. So many people were on the roads, they participated in the marches and manufacturing salt, and this way movement was taking a very, so boycott movement was carried on a very large scale. Abhi kya ho raha tha, these people, the workers who were there, they were picketing foreign clothes, liquor shops, foreign clothes, liquor shops. Picketed means people did not allow anyone to enter these shops. इन दुकानों में लोगों को अंदर जाने से रोकते थे. बहुत सारे लोग जेल चले गए अर्बन एरियाज़ में. एंड विमेन also participated. I told you when I started this topic, I told you civil disobedience movement was the movement that for the first time faced such a large scale participation of women, and moved by Gandhiji's call. Gandhiji was asking everyone to participate na. So they thought ki they have to serve their country, they have to serve their nation, and that was the duty of women. Women have to participate in these movements. So अभी क्या हो गया कि मेल मेंबर्स के साथ ही फीमेल मेंबर्स वेर ऑल्सो सीन ऑन द रोड्स. तो नाउ द ब्रिटिशर्स वेर रियली गेटिंग वेरी डिसअपॉइंटेड. ब्रिटिशर्स को लगा कि मेल मेंबर्स तो थे ही, अभी फीमेल मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, अब क्या होगा, हाउ विल दे स्टॉप दीज बिग मूवमेंट्स इन इंडिया. तो दे वेयर इन टू ट्रबल एंड दे वेयर इन टू टर्मोइल. गॉट इट. सो विमेन वेयर, ऐसे क्या है कि देयर वर चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ विमेन. लेकिन गांधी जी क्या था ना, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड, क्या वो सोच रहे थे कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ विमेन टू लुक आफ्टर होम. उनको ये लगता था कि औरतें घर में रहें, घर की देखभाल करें, एंड चूल्हा चौका संभालें, गुड मदर्स. नो 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 नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये नहीं कि वो चाहते थे कि लेडीज़ विमेन घर पे रहें, ऐसा नहीं था. सॉरी, डोंट टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर.
Gandhi ji's vision was that ही वॉज कैरिंग ऑन अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. तो ब्रिटिशर्स कभी कभी लाठी चार्ज कर देते थे, मार पीट पे उतर जाते थे, तो उनको लगा से दैट विमेन शुड नॉट बी हर्ट इन दिस मूवमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरतें जो है उनको चोट लग जाए या इस तरह का. दैट्स वाई द गांधी जी वॉज थिंकिंग दैट पीपल शुड रिमेन, women should remain at home. Okay children, so next topic we will be starting in the next class children. Till then please keep revising. Thank you so much.